afternoon, sir. Is PPT visible to you all? Yes, sir. Okay. Okay, in last lecture I told about serializability, and as you all know, serializability ensures the isolation property and preserves database always in consistent state, or preserves the consistency of the database. If we have any serial schedule, equivalent serial schedule of that non-serial schedule, then we can say that ki non-serial schedule is serializable schedule and guarantees the preservation of consistency in database. Now second concept is recoverability. So here we have to design such a non-serial schedule which is both serializable and recoverable. Though in serializability, transactions follow the recoverability within the transactions, but if concurrent transactions are executing simultaneously, then we have to follow some other constants to make our non-serial schedule recoverable. Again, we can classify recoverable schedule into three parts. One is cascading schedule, second one is cascadeless schedule, and third one is strict schedule. So as you all know, there are two types of the schedule, serial schedule and non-serial schedule. So non-serial schedule may be consistent and may not be consistent. If your non-serial schedule is serializable, then you can say that your database is in consistent state. But if your non-serial schedule is not serializable, then that may be consistent and may not be consistent. May be consistent and may not be consistent. And if your non-serial schedule is not consistent, then you should make your non-serial schedule recoverable. If any failure occurs, then we can perform rollback operations or we can perform undo operations so that our database can go to consistent state. Here our objective is to keep our database always in consistent state. So non-serial schedule should be both serializable and recoverable. What is the meaning of recoverable schedule? If a transaction Tj reads a data item previously written by a transaction Ti, then the commit operation of Ti appears before the commit operation of Tj, or we can say that commit operation of Ti precedes the commit operations of Tj, or you can say commit operation of Tj follows the commit operations of Ti. Then you can say your non-serial schedule is recoverable, otherwise your non-serial schedule is not recoverable. Did you get it? What I am saying? If a transaction Tj reads a data item previously written by Ti, means here Tj is performing read operations which is produced by Ti. So commit order of both the transactions should be same. Here Tj is using data of Ti. First Ti writes the data and then Tj performs the read operations.
So commit operations of both the transaction should be in same order. See here in this schedule. In this schedule, T1 transaction performs write operations. See here, T1 transactions perform write operations on X, and T2 transactions perform read operations on X. So here first T1 transactions perform write operations on X, and then T2 performs read operations on X. So order of commit should be C1 and C2. First T1 transactions perform the commit operations, and then T2 transactions perform the commit operations. If order is this C2 and C1, then in this case schedule is irrecoverable or non-recoverable. Did you get it? Mileni? Yes, sir. See this. On right hand side, see this schedule. This is T1 transaction and this is T2 transactions. So here T1 performs read operations on A, then performs write operations on A, and here T2 performs read operations on A and write operations on A, and in this case T2 performs commit operations first, and after performing the commit operations by T2 transactions, at this point there occurs a failures in T1 transactions. So in this case we have to perform undo operations, and we have to go over here to ensure the atomicity property, and due to atomicity property either perform all the operations or none operations. Actually any transactions must satisfy all the four property: atomicity, consistency, durability and isolation. So within the transactions, to ensure the atomicity property, we have to roll back. But after commit, we can't perform the rollback operations. And here you know this is the dirty read. Here transactions T2 is reading the value which is produced by the T1, and this write operations undone. Then without commit, performing the commit operations by T1, T2 read the value of A which is produced by T1, uncommitted value. Here T2 perform read operations on uncommitted value, and after commit we can't perform roll operations within the T2. That's why we say it is irrecoverable schedule. But if T2 wait commit operations performed by T1, and after performing the commit operations by T1 and then T2 performs commit operations, then in that case T2 can also perform the rollback operations, and that schedule will call recoverable schedule. Did you get it, Devyanshi? Yes, sir. सर हाँ बताइए. एक बार डर्टी रीड बता दो क्या है? मतलब ये है कि कमिट नहीं किया और आपने जो भी चेंजेस किया, सपोज वैल्यू ऑफ ए 100 था, ओके, देन T1 परफॉर्म्स रीड ऑपरेशंस, तो 100 हो गया. अब राइट ऑपरेशंस क्या किया, इसे चेंज कर दिया, 150 कर दिया, 50 ऐड कर दिया. अब आपने क्या किया कि इस लोकल बफर को आपने यूज कर लिया, तो इसने भी यूज कर लिया 150, एंड सपोज इसने इसको चेंज कर दिया 200 और इसने कमिट कर दिया, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स T1 यहाँ फेलियर अकर हो गया ड्यू टू सॉफ्टवेयर सिस्टम क्रैशेज या हार्डवेयर फेलियर. तो जब ये फेलियर हो गया तो ये क्या हुआ, रोल बैक करना पड़ेगा. तो ये रोल बैक करके यहाँ पे आया स्टार्टिंग में,
तो इसका मतलब जो 150 था वो अनडन हो गया, इसका राइट ऑपरेशन जो है अब वैलिड नहीं रहा। लेकिन ये जो रीड कर रहा है वो कौन सी वैल्यू रीड कर रहा है, 150। तो अगर ये रोल बैक हो रहा है और T2 इज डिपेंडेंट ऑन T1, तो इसको भी रोल बैक होना चाहिए। लेकिन आफ्टर कमिट यस जो है सर। आप रोल बैक नहीं कर सकते, आफ्टर कमिट आप रोल बैक नहीं यस कर सर। सकते। अगर आप उसके इफेक्ट को हटाना चाहते हो तो यू हैव टू परफॉर्म सेपरेट ट्रांजैक्शन, दैट इज कॉल्ड कंपनसेटिंग ट्रांजैक्शन। तो अब जो है इसने जो रीड किया वो डर्टी वैल्यू रीड किया कि नहीं, मिले नहीं। यस सर। तो ड्यू टू दिस डर्टी रीड, ठीक है, देयर अकर्स प्रॉब्लम। अब आप याद करिए जब हम बता रहे थे डिसएडवांटेजेस ऑफ कंकरेंसी, तो उसमें डर्टी रीड प्रॉब्लम थी कि नहीं? हेलो। यस सर। तो डर्टी रीड बोलिए या इसको बोलिए अनकमिटेड वैल्यू रीड कर रहा है। ये क्या कर रहा है, अनकमिटेड वैल्यू रीड कर रहा है। तो अब क्या करें कि अगर आप इसको अवॉइड करना चाह रहे हो तो उस केस में आप क्या करोगे कि इस कमिट को बाद में करोगे। अगर T1 का डेटा T2 रीड कर रहा है तो पहले किसको कमिट होना चाहिए, बताइए? T1। T1 को, और फिर T2 को कमिट होना चाहिए। तो अगर कमिट के पहले कोई फेलियर अकर हो रहा है तो ये रोल बैक होगा, और सिंस T2 जो है didn't perform commit operations, so we can perform rollback within the T2 transactions. Did you get it? यस Hello. सर। So this is the example of recoverable schedule. See here. Here, this is the dirty read. Okay. And first T1 performs the commit operations and then T2 perform the commits operations. तो अगर यहाँ पे कोई रोल बैक फेलियर अकर हो रहा है तो ये रोल बैक हुआ, और चूंकि कमिट अभी ये नहीं किया तो इस पॉइंट पे इसको भी आप रोल बैक कर दोगे, तो ये डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट में नहीं रहेगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिकवरेबल शेड्यूल। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि हमेशा डेवलप करें, डिजाइन करें रिकवरेबल शेड्यूल। सिलाइजेबल तो है, ठीक है, लेकिन रिकवरेबल भी हो कि अगर इन द केस ऑफ फेलियर if any transactions roll back, so all the transactions which is dependent on that transactions we can perform rollback operations in those transactions also. Now I think that you all understood the concept of recoverable schedule. Now read this sentence. If a transaction Tj reads a data item previously written by Ti, इसका मतलब Ti राइट ऑपरेशंस कर रहा है एंड देन Tj क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। देन कमिट ऑपरेशन ऑफ Ti अपीयर्स बिफोर द कमिट ऑपरेशंस ऑफ Tj। अगर Ti रीड करता विच इज प्रोड्यूस्ड बाय Tj, देन पहले Tj कमिट होता देन Ti कमिट होता, तो ऑर्डर जो है सेम होगा। मिले नहीं? डिड यू यस गेट इट? सर। सर तो अगर इसमें कोई जैसे अभी बताइए। आपने बताया कि डर्टी रीड होती है जो उसे बोलते हैं रीडिंग, अनकमिटेड वैल्यू को डर्टी रीड बोलते हैं। हम्म। तो जैसे जो रिकवरेबल वाला एग्जांपल था उसमें जो ये रीड करे T2 T1 को, तो बाद में कमिट हो रहा है, इसलिए अभी भी वो डर्टी रीड रहेगा। अगर नहीं, वो अब पहले कहाँ कमिट हो जाता बाद में कौन रीड वाले कर केस में कह रहे हो? इस केस में तो ये डर्टी रीड हुआ ना। रिकवरेबल रिकवरेबल में। हाँ, उसमें भी डर्टी रीड ही होगा वो, लेकिन डर्टी रीड में क्या है कि थोड़ा सा प्रोटोकॉल हमने लगा दिया। अब आप वही एग्जांपल सोचो कि ये जो है ये मिलेनी, ठीक है, और यहां पे जो है अनदर स्टूडेंट एक्स है। आप यहां पे आंसर लिख रहे हो एग्जाम में, ठीक है, और ये देख के जो है कॉपी कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, ठीक है। अब अभी मिलेनी ने कॉपी सबमिट नहीं किया और ये कमिट करके सबमिट करके चला गया,
और फिर उनको लगा मिलेनी को कुछ गलत हो गया है, तो यहाँ पे अपडेशन किया, तो ये तो चला गया, डर्टी चीज रीड करके चला गया कि नहीं? हेलो? यस सर, यस सर। तो अगर डर्टी रीड कर रहे हो तो ये देखो कि पहले मिलेनी सबमिट कर दे कॉपी, फिर आप सबमिट करो, तब तो कोई चांसेस ऑफ चेंजेस नहीं होंगे ना, है? यस सर। डिड यू गेट इट? आप यस डर्टी सर। रीड कर रहे हो, लेकिन डर्टी रीड के केस में प्रॉब्लम कब होगा? जब फेलियर अकर होगा ना। अगर फेलियर नहीं हो रहा है, अगर मान लो इसने कमिट किया और मिलेनी ने बाद में सबमिट किया, लेकिन कोई चेंजेस नहीं कर रही है मिलेनी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यस सर। प्रॉब्लम कब होगी? जब कोई फेलियर अकर हुआ ड्यू टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्लियर हो गया? ओके सर। तो इसमें चीटिंग आप कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखो कि पहले जिससे चीटिंग कर रहे हो वो पहले कमिट करे, फिर आप कमिट करो, तो उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अगर जिससे चीटिंग कर रहे हो अगर वो कुछ गलत किया हो तो अलग केस है, तो आप भी कर लोगे, लेकिन यहाँ पे जो लॉजिकली कोई भी चीज आप परफॉर्म कर रहे हो वहां गलत चीज तो परफॉर्म करोगे नहीं, वो तो जो एज पर दी नीड्स होगा उसकी कोडिंग करोगे आप। ठीक है? डिड यू गेट इट? सर जो नीचे वाला रिकवरेबल वाला है उसमें भी तो T1 पहले कमिट कर रहा है, फिर T2 कमिट कर रहा है। कहाँ पे बताओ? कौन इसमें सा देखो नीचे वाला? पहले T1, ये इसमें तो ये रिकवरेबल बाद वाला। में कमिट किया ना। अब इसमें क्या हो रहा है, T1 पहले कमिट किया ना, फिर T2 कमिट और किया। फिर T2 ने किया, तो तो तब भी अगर उस पे डर्टी रीड लिखा है। अरे डर्टी रीड तो ये है ही, लेकिन अगर मान लो कोई फेलियर हुआ, मान लो इस पॉइंट पे फेलियर हुआ, तो आप रोल बैक करोगे। अब ये चूंकि कमिट नहीं किया है तो इसको भी तो रोल बैक आप कर सकते हो। अगर यस मान सर। लो इसने कॉपी सबमिट नहीं किया और ये कुछ आंसर में चेंज कर रहा है, तो ये भी तो चेंज कर लेगा। लेकिन अगर ये कॉपी सबमिट करके चला गया यस और सर। ये चेंज कर रहा है तो ये चेंज नहीं कर पाएगा ना। यस हेलो? सर। तो यहां पे क्या हो रहा है कि अगर यहां पे ये कुछ फेलियर हुआ तो ये क्या करेगा, अंडू करेगा। तो चूंकि कमिट नहीं हुआ है, अभी अभी ये वेट कर रहा था, तो कमिट नहीं किया, तो इसको भी आप रोल बैक करा दोगे, तो ऑलवेज आपका डेटाबेस क्या होगा, इनकंसिस्टेंट स्टेट होगा। लेकिन अगर आप कमिट पहले करा दोगे तो रोल बैक नहीं हो सकता है ना, यस सर। क्योंकि आपको पहले ही हमने बताया था कि आफ्टर कमिट जो है आप रोल बैक नहीं कर सकते हो, आप अनदर ट्रांजैक्शंस जो है एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है? टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ प्रीवियस ट्रांजैक्शन। डिड यू गेट इट? यस सर। या यानी कोई डाउट हो तो फिर पूछ सकते हो, हमने तो कोशिश किया कि समझा दिया जाए। सर आ तो गया। रिकवरेबल शेड्यूल तभी होगा जिससे जो चीटिंग कर रहा है, डर्टी रीड हमेशा प्रॉब्लम नहीं करता है ना। डर्टी रीड अगर मान लो ये दोनों, हम कह रहे हैं कि ये ऑर्डर, हम कह रहे हैं ऑर्डर जो है पहले कमिट ये किया फिर कमिट ये कर दे, कमिट ये कर दे, तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी उस केस में? पहले ये कमिट किया फिर ये कमिट किया, अगर कोई फेलियर अकर नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिड यू गेट इट? हेलो? यस सर। प्रॉब्लम कब होगी? अगर यहां पे कमिट के पहले T1 के कमिट के पहले इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट, इफ एनी फेलियर अकर्स, देन फेलियर अकर्स करने के लिए क्या होता है, आइदर परफॉर्म्स ऑल दी ऑपरेशंस आर नन, तो आपको कहां जाना पड़ेगा, एटॉमिसिटी इंश्योर करने के लिए प्रीवियस में जाना पड़ेगा। तो अगर ये प्रीवियस पे चला गया तो इसका मतलब जो ये मॉडिफाई किया था उसको T2 जो रीड कर रहा है वो तो डर्टी रीड हुआ, डर्टी रीड हुआ। लेकिन डर्टी रीड में जैसे आप बोल रहे हो, इसको यहां पे प्रॉब्लम इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ये फेलियर अकर हुआ ही नहीं। डर्टी रीड तो ये भी है क्योंकि ये अनकमिटेड कर रहा है ना, अभी तो कमिट हुआ नहीं, बिना देखे इसने क्या किया, रीड कर लिया। तो अगर आप बिफोर कमिट कोई रीड कर रहे हो विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अनदर ट्रांजैक्शन, दैट इज द डर्टी रीड। ओके? अगर ये यहां पे कमिट कर लेता, अगर यहीं पे ये कमिट कर देता और फिर आप इसको रीड करते,
तो इसका मतलब अब ये आप डेटाबेस से रीड कर रहे हो, ये इस पे डिपेंडेंट नहीं है, तो दिस इज नॉट कॉल्ड डर्टी रीड. डिड यू गेट इट मिलेनी? यस सर. अगर आफ्टर कमिट रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो उस केस में डर्टी रीड नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है. लेकिन बिफोर कमिट अगर आप रीड कर रहे हो तो इसका मतलब दिस रीड ऑपरेशन इज डिपेंडेंट ऑन T1 ट्रांजैक्शंस. तो अगर T1 फेलियर के कारण रोल बैक हो रहा है तो T2 को भी रोल बैक होना चाहिए. लेकिन यहां पे आपने कमिट कर दिया है, ठीक है, तो अगर बिफोर कमिट यहां पे फेलियर हो रहा है तो सिर्फ इसी को रोल बैक करना होगा, इसे रोल बैक नहीं करना होगा. ठीक है, आगे के शेड्यूल में क्लियर हो जाता है ये. तो अभी रिकवरेबल एंड नॉन ओके रिकवरेबल, सर. मतलब रिकवरेबल एंड नॉन रिकवरेबल और इरिकवरेबल क्लियर हो गया होगा. तो इसकी सिंपल सी डिफिनीशन है यस सर. कि इफ अ ट्रांजैक्शन TJ रीड्स अ डेटा आइटम प्रीवियसली रिटन बाय अ ट्रांजैक्शन TI, then commit operation of TI appears before the commit operations of TJ. अगर ये ऑर्डर नहीं मेंटेन कर रहा है तो वो इररिकवरेबल होगा. तो इररिकवरेबल शेड्यूल अगर फाइंड आउट करना है किसी भी नॉन सीरियल शेड्यूल में तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे? डर्टी रीड. डर्टी रीड अगर नहीं है, डर्टी रीड नहीं है तो वो रिकवरेबल होगा. लेकिन डर्टी रीड नहीं है तो वो रिकवरेबल भी हो सकता है, मतलब डर्टी रीड है तो रिकवरेबल भी हो सकता है और नॉन रिकवरेबल भी हो सकता है. रिकवरेबल कब होगा? जब सेम ऑर्डर में कमिट आप परफॉर्म कर रहे हो जिस ऑर्डर में डर्टी रीड किया गया है, और सेम ऑर्डर में नहीं कर रहे हो तो वो क्या होगा? इररिकवरेबल होगा. डिड यू गेट इट? यस सर. तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन गेट एंड AKTU एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस टॉपिक. So concept should be clear to you all. Now second one is, there are three types of the recoverable schedules: cascading schedule, cascadeless, and strict. So what is the meaning of cascading? See here. Here T1 performs read operations on A, then performs write operations on A. So before commit, T2 transactions read the value of A. So please let me know whether this is dirty read or not. Mileni. Hello. Yes sir. This is the Dirty reader. example of dirty read. Now this is also example of dirty read, and this Dirty is read. also example of dirty read. You can say that transactions T4 is dependent on T3 and T3 is dependent on T2 and T2 is dependent on T1. Okay. And suppose we perform commit operations in this order: C1, then C2, then C3, and then C4. Now let me know whether this schedule is recoverable or not. Recoverable की definition क्या है? If a transaction TJ reads a data item previously written by transactions TI, then commit operations of TI precedes the commit operations of TJ. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि T2 रीड कर रहा है T1 से, तो T1 को पहले कमिट होना चाहिए T2 से, ये है. यहाँ पे क्या हो रहा है? T3 जो है रीड ऑपरेशन कर रहा है T2 से, तो T2 को पहले कमिट होना चाहिए फिर T3 को होना चाहिए, एंड ईयर T3 को पहले होना चाहिए फिर T4 को. तो एज पर द डेफिनेशन दिस शेड्यूल इज रिकवरेबल शेड्यूल. डिड यू गेट इट? Yes sir. Yes sir. Now suppose before commit, if there occurs any failure, then to ensure the atomicity property,
we have to perform rollback operations, and we go here. Now, since T2 didn't perform commit operations, so we can perform rollback operations in T2. Again, since T3 didn't perform commit operations, then we can perform rollback over here. And then we can perform rollback over here. So it is recoverable schedule. In case of failure, we can perform rollback of all the concurrent transactions. So there is no chance of error. This is the correct schedule and recoverable schedule. But one rollback leads to a series of rollback. Suppose 10,000 transactions are dependent on this T1. Then if we perform any rollback within the T1 transactions, then this leads to a series of rollback operations. So here we are wasting the time of the CPU. In cascading rollback, we are wasting the processing time of the CPU. First we execute the things in doing changes, and then we spend time to perform undo operations. So performance will be degrade. Did you get it? Hello? Yes sir. Yes, sir. तो अगर आप चाह रहे हो कि ये जो कास्केडिंग इफेक्ट है ये ना हो, और जिसमें कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा उसे आप क्या बोलोगे? कास्केडलेस शेड्यूल। तो क्या करोगे कि ये कास्केडलेस शेड्यूल हो जाएगा? प्लीज लेट मी नो। ऐसा क्या कर दिया जाए कि ये जो कास्केडिंग रिकवरेबल शेड्यूल है वो कास्केडलेस शेड्यूल रिकवरेबल शेड्यूल में कन्वर्ट हो जाए? बताइए। मिलेनी। रिकवरेबल है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? जब तक बताइए। जब तक फाइनली वो सारा लिख नहीं लेता तब तक कोई रीड ही ना करे। हाँ तो क्या करें जब वो बताओ? लास्ट पूरा लिख ले। अनकमिटेड रीड को हम अलाउड ही ना करें, डर्टी रीड को क्या करें? अलाउड ही ना करें। अगर पहले यहाँ पे कमिट हो जाए देन ये रीड करे, और फिर ये कमिट हो जाए फिर ये रीड करे, फिर ये कमिट हो जाए फिर ये रीड करे, एंड आफ्टर दैट ये कमिट हो। तो अनकमिटेड वैल्यू को हम रीड करने दे नहीं रहे हैं। तो अगर डर्टी रीड को आप हटा दोगे तो क्या होगा? कास्केडिंग इफेक्ट जो हो रहा था वो अपने आप रिमूव हो जाएगा। डिड यू गेट इट? यस सर। और आपका शेड्यूल क्या हो जाएगा? कास्केडलेस रिकवरेबल शेड्यूल। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? किस टाइप का आपको शेड्यूल बनाना चाहिए? कास्केडलेस रिकवरेबल शेड्यूल या कास्केडिंग रिकवरेबल शेड्यूल? कास्केडलेस। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस उसमें क्या होगा? डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें कॉन्करेंसी नहीं रहेगी, कॉन्करेंसी रहेगी। सपोज T2 वांट टू परफॉर्म रीड ऑपरेशंस ऑन डेटा आइटम बी, तो बी के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अलाउ कर दोगे। अनदर डेटा आइटम सी है, सी के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी आप अलाउ कर दोगे। लेकिन अगर ये ए वैल्यू रीड कर रहा है जिसको जो है T1 जो है चेंजेस कर रहा है जिस वैल्यू में, तो जब तक T1 कमिट नहीं कर देगा तब तक उसे आप अलाउ नहीं करोगे। तो उस केस में अगर यहाँ पे कोई फेलियर अकर हुआ तो सिर्फ इसी को रोल बैक करना होगा। इस रोल बैक का इफेक्ट अदर ट्रांजैक्शंस में नहीं होगा। तो मतलब ये दिस रोल बैक डजंट लीड टू अ सीरीज ऑफ रोल बैक ऑपरेशंस। तो जो वेस्टेज ऑफ टाइम है उसको आपने क्या किया? सेव कर लिया। लिटिल बिट कॉन्करेंसी आपने क्या किया? कम कर दिया। लेकिन जो CPU टाइम है उसको आप सेव कर लिया।
तो सबके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं. डिड यू गेट इट? Yes, Yes, sir. sir. See, cascadeless schedule. Is it visible to you all? Cascadeless schedule. Yes, sir. Where is cascadeless? Now I think cascadeless schedule is visible to you all. Okay. See here. First T1 perform commit operations. Then we allow perform commit operations. Then we allow T2 transactions to read the value of A. Then if at this point any failure occurs, then we have to only roll back in T1 transactions. No effect on other transactions. That's why we say it is cascade-less recoverable schedule. तो अगर cascade-less schedule कोई है तो ऑटोमेटिकली वो रिकवरेबल होगा ही होगा. ओके. अगर Yes, sir. cascade-less schedule है तो वो रिकवरेबल होगा ही होगा. ठीक है. Then again see here. Please let me know whether this is cascadeless or not. Second schedule. This one. No, sir. नहीं होगा क्योंकि क्यों? वो पहले लिख रहा है और Sir, कमिट होगा. बाद में हो रहा है. होगा. लिखा भी तो है नीचे, मिले नहीं, देख भी तो लो. हम सिर्फ रीड सर की बात कर लेकिन रहे थे, अनकमिटेड राइट की बात नहीं कर रहे थे. किसकी बात कर रहे थे कास्केडलेस में? हेलो. Sir, read की. रीड की बात कर रहे थे, राइट की बात हम नहीं कर रहे थे. ठीक है. तो यहां पे आप अगर रीड परफॉर्म कर रहे हो, इस केस में रीड परफॉर्म कर रहे हो आफ्टर कमिट रीड ए एंड देन परफॉर्म राइट ए, तो ये क्या हो सकता है? ये कास्केडलेस शेड्यूल होगा. ठीक है. लेकिन जो प्रॉब्लम ब्लाइंड रीड के कारण होता था वो प्रॉब्लम इसमें रहेगी. तो अगर हम एक कांस्टेंट और लगा दें कि बिफोर कमिट नाइदर परफॉर्म रीड नॉर राइट ऑपरेशंस ऑन ए, तो उस शेड्यूल को हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट शेड्यूल. सर अगर T2 के राइट से पहले ही अगर हो जाता है, मतलब क्या? राइट के बाद अगर रोल बैक होता है तो फिर T2 को भी तो रोल बैक होना पड़ेगा. किस केस में कह रहे हो? बताओ क्या कह रहे हो, बोलो. सेकंड वाले में अगर हाँ. T2 जहाँ राइट ए कर रहा है उसके बाद अगर फेलियर होता है, रोल बैक होता है, तो फिर T2 को भी तो रोल बैक होना पड़ेगा. फेलियर कहाँ पे हो रहा है? बताओ किस कह रहे हो? यहाँ पे फेलियर आपने किया, कमिट यहाँ से पे फेलियर जस्ट हुआ. पहले, कमिट से जस्ट पहले. हाँ, तो ये फेलियर हुआ, ये तो रिकवरेबल है ही ना. तो अभी कमिट आपने नहीं किया है, कमिट इसके बाद ही करोगे, T1 के बाद ही कमिट करोगे, तो रोल बैक की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. मैं पूछ रहा हूं कास्केडलेस है या नहीं है? तो कास्केडलेस है. क्यों कास्केडलेस है? क्योंकि कास्केडलेस के डिफिनीशन में हम डर्टी रीड को अलाउड नहीं कर रहे हैं. डर्टी रीड क्या है? अनकमिटेड वैल्यू को रीड करना. राइट के बारे में कोई हम बात नहीं कर रहे हैं. तो कास्केडलेस में अनकमिटेड राइट आप परफॉर्म कर सकते हो. ओके सर. आप जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो, अपने आप समझ में आ जाएगा.
अब कास्केडलेस है तो रिकवरेबल होगा ही होगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब रोल बैक अपने माइंड से निकाल दो, ठीक है। और अगर ऑर्डर ऑफ जो कमिट है वो सेम है ऑर्डर ऑफ डर्टी रीड, तो भी रिकवरेबल होगा। अगर ऑर्डर ऑफ कमिट जो है सेम नहीं है ऑर्डर ऑफ डर्टी रीड, तब वो क्या होगा, रिकवरेबल होगा। ठीक है, मिले नहीं? यस हेलो। सर। तो अनकमिटेड की बात हम नहीं कर रहे हैं कास्केडलेस में, लेकिन ना अनकमिटेड रीड को अलाउ करें और ना अनकमिटेड राइट को अलाउ करें, तो उस शेड्यूल को आप क्या बोलोगे, स्ट्रिक्ट शेड्यूल। तो नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि ये ज्यादा स्ट्रिक्ट है। और अगर कोई शेड्यूल स्ट्रिक्ट है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कास्केडलेस होगा, और कास्केडलेस है तो रिकवरेबल होगा। डिड यू गेट इट? यस हेलो। सर। तो मोर कांस्टेंट्स ऑन स्ट्रिक्ट शेड्यूल है, तो कांस्टेंट ऑफ दिस शेड्यूल इज स्ट्रिक्ट देन द कांस्टेंट ऑफ कास्केडलेस शेड्यूल, दैट्स व्हाई नेम ऑफ दिस शेड्यूल इज स्ट्रिक्ट शेड्यूल। So before commit, सर एक चीज पूछनी है। another transactions can't perform read as well as write operations, which is the actually dirty read is not allowed and blind write is also not allowed in strict schedule. हाँ, अब बताइए क्या कह रहा हूं। सर जैसे कास्केडिंग में हो रहा था कि हम कमिट नहीं कर रहे थे, इसलिए अगर कोई फेलियर अकर हो रहा था तो सारे ट्रांजैक्शंस को रोल बैक होना पड़ रहा था। इसलिए कास्केडलेस में हम पहले से ही कमिट कर देते हैं जिससे कि रोल बैक कम हो। लेकिन वही चीज है, अगर हम जैसे सेकंड वाले एग्जांपल में आपने बोला कि अनकमिटेड राइट कर रहे हैं, तो वो भी तो वही हुआ ना कि अगर राइट के बाद अगर फेलियर हो रहा है तो उसको भी तो, बाकी सबको भी तो फिर रोल बैक होना पड़ेगा, फिर तो सेम कास्केड की तरह हो गया ना। किसको आप कह रहे हो, आप क्या कहना चाह रहे हो बताओ। जो ये सेकंड वाला एग्जांपल है जिसमें अनकमिटेड राइट किया है, हाँ हाँ। अनकमिटेड राइट करने के बाद अगर फेलियर अकर होता है तो मान लो जैसे आपने बोला कि बहुत सारे अगर ट्रांजैक्शंस होते हैं तो सबको रोल बैक होना पड़ेगा, तो वैसे ही तो सेम कास्केड में हो रहा अरे था। रोल बैक तो हो ही जाएगा बेटा, इसमें रोल बैक की तो बात ही नहीं हो रही है। कमिट इसका क्या तो हो रहा सर है, तभी तो अगर कास्केडलेस कमिट पढ़ रहे थे इसका हम कि बाद में रोल हो बैक रहा कम हो। है, तो अगर यहाँ पे आप कोई भी फेलियर होगा तो ये रोल बैक होगा, तो T2 तो रोल बैक हो ही जा रहा है, ये रिकवरेबल तो है ही, ये रिकवरेबल तो है ही। तो सर वो तो कास्केड वाला भी तो है। कैसा? ऐसे ऐसे तो कैसे कह कास्केड रहे हो? वाला भी तो रिकवर हो सकता है, वो तो हम इसलिए ये वाला पढ़ रहे हैं क्योंकि उसमें रोल बैक बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मतलब अरे सारे ये ट्रांजैक्शंस को करना पड़ रहा है। कास्केड लेस में आपने अभी इसमें हमने क्या कहा, कास्केड लेस में कमिट के बाद आप रीड कर रहे हो ना, तो रीड हमने कहां परफॉर्म किया, ये तो हमने राइट परफॉर्म कर रहे हैं ना, राइट। ये ब्लाइंड राइट का एग्जाम्पल है। और ब्लाइंड राइट में हमने आपको बताया था व्यू सीरियलाइजेबिलिटी में कि अगर इसका ऑर्डर हम चेंज कर देंगे तो भी फाइनल आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ब्लाइंड राइट को कास्केड लेस में कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट वाले में ब्लाइंड राइट को भी हम अलाउड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, विदाउट रीडिंग T2 इज यस सर। परफॉर्मिंग राइट ऑपरेशंस के। तो यहां पे अगर आप इसको अलाउ करोगे तो लास्ट अपडेट प्रॉब्लम आ जाएगा। एक और हमने बताया था लास्ट अपडेट प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम रहेगी कास्केडलेस शेड्यूल में, लेकिन स्ट्रिक्ट शेड्यूल में लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी क्योंकि ब्लाइंड राइट वाला भी आपने अवॉइड कर दिया। डिड यू गेट इट? ओके सर। यस सर। आप चीजों को मिक्स कर दे रहे हो, मिक्स मत करो। कास्केडिंग का मतलब क्लियर हो गया? कास्केडिंग का मतलब क्या है कि अगर एक ट्रांजैक्शन फेल हो रहा है और आपको उसका इफेक्ट जो है कई ट्रांजैक्शंस पे है ड्यू टू डिपेंडेंसी, तो सबको रोल बैक करना पड़ेगा। तो उस डिपेंडेंसी को आपने कम किससे कर दिया,
डर्टी रीड अलाउ नहीं कर रहे हो, मतलब अनकमिटेड रीड को अलाउ नहीं कर रहे हो। तो अनकमिटेड रीड को हमने अलाउ नहीं किया, तो उसमें जो सीरीज आप था चेंजेस वो क्या हुआ, वो कम हो गया। अब आप कह रहे हो कि इसमें जो है ये अनकमिटेड अगर हमने रोल कर लिया तो इसका रोल बैक नहीं होगा, ये तो रीड कर ही नहीं रहा है, ये तो ब्लाइंड है, सोच के आया कि हमें लिखना ही लिखना है। हेलो मिलेनी, क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो ब्लाइंड राइट से अनदर टाइप की प्रॉब्लम होती है लास्ट अपडेट प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम होती है? लास्ट अपडेट प्रॉब्लम। तो अगर आपको और भी अच्छा बनाना है करेक्ट शेड्यूल, तो दोनों को आप परफॉर्म नहीं करोगे, ना रीड ना राइट, स्ट्रिक्ट शेड्यूल, ठीक है। लेकिन अगर आप स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाओगे तो उस केस में जो है नंबर ऑफ द कंकरेंसी क्या होगी, लो हो जाएगी। तो हम बीच का रास्ता चलते हैं कि हमारा रिक्वायरमेंट होता है कि जो हम डिजाइन करें नॉन सीरियल शेड्यूल, सच टाइप ऑफ नॉन सीरियल शेड्यूल विच इज सिलेजिबल एंड कास्केडलेस शेड्यूल। और कास्केडलेस शेड्यूल है तो ऑटोमेटिकली रिकवरेबल होगा। लेकिन आप और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाह रहे हो तो नाइदर अलाउ रीड ऑपरेशंस, uncommitted read operations, nor allow uncommitted write operations. Did you get it? मिलेनी? यस सर, यस सर। तो उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए तो फिर स्ट्रिक्ट शेड्यूल है, जो आप कह रहे हो प्रॉब्लम तो होगी होगी मिलेनी। इससे प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है बताओ? लेकिन यस सर। एंड रिजल्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, तो इसको आप ले सकते हो, कोई बात नहीं है। एक जो है अल्टीमेटली अगर ये कुछ चेंज करता भी तब भी इसको करना ही करना था। तो अगर इसका ये लास्ट हो जा रहा है, एक्चुअली जब आप इसको रोल बैक करोगे, देखो इसको आप रोल बैक करोगे, ओके, तो इसको रोल बैक आपने किया तो ये कहां चला गया, मान लो वैल्यू ऑफ ए 100 था मिलेनी, ठीक है। तो T1 ट्रांजेक्शन से रीड परफॉर्म किया तो 100 रीड हो गया। अब इसमें इसने 50 का इंक्रीमेंट कर दिया, ए इक्वल टू ए प्लस 50 कर दिया, तो ये 150 हो गया। अब ये सोच के आया था कि हमें जो है क्या करना है, 50 ऐड कर देना है। तो उस केस में क्या हुआ कि इसने कहां से, मतलब रीड किया ही नहीं, इसने क्या कर दिया 150 को 200 कर दिया, ए की वैल्यू क्या किया 200 कर दिया, जो ए की वैल्यू है इसको 200 कर दिया यहां पे, ठीक है। अब यहां पे फेलियर अकर हो गया, यहां पे क्या हुआ फेलियर अकर हो गया, तो ये रोल बैक होके कहां जाएगा 100 पे जाएगा। तो इसको क्या फर्क पड़ता है, ये रीड तो कर ही नहीं रहा, इसे तो 200 करना ही करना है। तो इसको रोल बैक करके करोगे क्या मिलेनी? हेलो, यस सर। डिड यू गेट इट? इसको तो सोच के आया है कि मुझे तो 200 करना ही करना है वैल्यू ए को। तो अगर ये रीड करता तब तो डर्टी रीड होता, ये तो राइट परफॉर्म करने आ रहा है। तो अगर इसको आप रोल बैक नहीं भी करते हो तो भी फाइनल वैल्यू क्या होगी 200 होगी, ठीक है। यस सर। तो दोनों केस में फाइनल वैल्यू क्या होगी 200 होगी। तो इसको रोल बैक करने की जरूरत क्या है कि अलाउ करो आगे का एग्जीक्यूशन हो। डिड यू यस गेट सर, इट? यस सर। अब तुम्हारा शायद डाउट क्लियर हो गया होगा। यस सर। तो इसलिए अगर रोल बैक इसका नहीं भी हो रहा है तो भी कोई दिक्कत मतलब आपको होनी नहीं चाहिए उस केस में, ठीक है। यस सर। लेकिन इसके कारण भी क्या हो रहा है कि ये जो अपडेट करना चाह रहा था वो क्या हुआ लॉस्ट हो गया। पहले क्या होना चाहिए 150 होना चाहिए, फिर 200 होना चाहिए, यहां पे क्या हो रहा है 100 के बाद 200 हो जा रहा है। तो एक अपडेट जो है आपका क्या हो रहा है लॉस्ट हो जा रहा है। तो अगर उसको भी आपको मतलब चाह रहे हो कि वो भी ना हो, लास्ट अपडेट प्रॉब्लम भी ना हो, तो आप क्या करोगे कमिट के बाद दोनों रीड एंड राइट को अलाउ करोगे। लेकिन ये क्या हो गया स्ट्रिक्ट शेड्यूल हो गया। आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। There are 3 types of the schedule: cascading यस schedule, सर। cascadeless schedule, and strict schedule. Okay.
Now time is over, and let me download the attendance, then you may leave the session. Now attendance is downloaded. You may leave. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome.